friends, welcome again to our channel Career Weavers. I hope you are doing good in your studies. So पिछली जो वीडियोस हमने बनाई थी फ्रेंड्स, वो हमने फैक्टराइजेशन चैप्टर्स पे बनाई थी, उसके कुछ पार्ट्स भी हमारे बनाए हुए हैं। तो अब जो ये न्यू वीडियो, इट इज अबाउट अ न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम द क्लास 9th बुक सेलिना. द चैप्टर इज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. अब इस चैप्टर्स को हम पार्ट में करेंगे, लाइक इस चैप्टर में हमें मेथड्स टू हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस बट डिफरेंट मेथड्स. सो द फर्स्ट दिस वीडियो इज अबाउट द सब्स्टिट्यूशन मेथड to solving the linear equations. Okay, so before starting of this chapter, before starting of the method to solve the linear equation, we should know that what is a linear equation, ठीक है, और what are simultaneous linear equation. Because एक होता है कि चैप्टर हमारे पास linear equation, but this chapter is simultaneous linear equation. Why it is known as simultaneous linear equation? Start करते हैं without wasting time. Yes, first of all you should know the definition of a linear equation. A linear equation, an equation of the form ax plus by plus c is equals to 0, where a, b, c are constants or real numbers and x, y are variables. एक ऐसी इक्वेशन जिसकी फॉर्म हो ax plus by plus c is equals to 0, where a, b, c are constant हो and x and y are variables. For example, 5x minus 2y is equals to 16. 5 to 16 are the constants. अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ like this. Again this is my form ax plus by plus c. अगर आप बोलोगे यहाँ पर तो प्लस है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बन गई कोई फॉर्म. ओके, where 5 minus 2 minus 16 are the constants, so and x, y are the variable. So that is the definition of a linear equation. But अभी हमने यहाँ पर बात की है simultaneous linear equation. What does it mean? Simultaneous linear equation क्यों बोलोगे? अब देखिए, for example, these two equations we have to solve them. First of all, when these two equations have same variables in them, then they are known as simultaneous linear equation. अब दोनों में x and y variables हैं, but अगर sometimes like this, कोई भी equation ले लो, 3x plus 2y is equals to 7 and next is 5x plus 4z is equals to 8. These are not simultaneous linear equation. Why? Because there is x and y and there is x and z. There is a difference in the variables. I hope आपको समझ लग गया होगा simultaneous linear equation क्या होती है. उनमें variables दोनों में same होनी चाहिए. Okay, got it? अब today's method is to solve the linear equation by substitution method. अब substitution से हमें mind में एक चीज आ जाती है, substitute means उसमें कुछ ना कुछ हमें भरना है, उसमें कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू में डालना है कि उसको हम सॉल्व कर सके. लाइक द फर्स्ट सम मूविंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जैसे हमारा शुरू से रहता है. द फर्स्ट इज x plus y is equals to 7 and the next is 3x minus 2y is equals to 11. Now first of all see both variables in x and y, therefore their simultaneous equation can be solved. Got it? अब how to solve this equation? This is equation number 1, this is equation number 2. मैंने इक्वेशन नंबर 1 से क्या किया, x की वैल्यू फाइंड करी, वो क्या आ जाएगी 7 माइनस y. माइनस कैसे करी, इधर प्लस हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू. अब इसको मैंने दे दिया स्टार. नाउ पुटिंग x is equals to 7 minus y in equation 2. अब 2 में पुट कर देना हमने x की वैल्यू 7 माइनस पर, मैंने वही किया. गॉट इट? ठीक है. अब 3 into 7 21 minus 3 into y 2y 11. ओके, अब 21 माइनस, सॉरी इसको अगले स्टेप इधर करते हैं. 21 माइनस 5y माइनस 5/2, माइनस माइनस प्लस, बट साइन किसका रहेगा, माइनस का. ओके, माइनस 3 plus 2 5. गॉट इट? अब उसके बाद मैंने क्या किया, 11 को इस साइड शिफ्ट कर दिया और 5y को उस साइड शिफ्ट कर दिया. 5y इधर माइनस था, उधर के प्लस, ये इधर प्लस था, उधर के माइनस. नाउ 21 minus 11 इट्स 10. Find is here multiplying by y. 5y means 5 into y. अगर 5 को मैं नीचे भेजूं तो it means it's like y is equals to 10 by 5. तो 5 on the 5, 5 to the 10, मेरे पास y आ गया 2. Now putting y in equation number star, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 minus 2 5.
सो आपकी x और y की वैल्यू कितनी आ गई? x is equals to 5 and y is equals to 2. Got it? So this is the substitution method. Simple question first. अब हम सिंपल से नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते हैं. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लेते हैं. Yes. The next question. कुछ नहीं करना है इसमें से बस सब्स्टिट्यूट करना है. एक की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट दूसरे में कर दीजिए और आपका इजीली बहुत इजीली आपका आता जाएगा आंसर. तो ये क्वेश्चंस आपको एक चीज याद रखना, कॉम्पिटिटिव में जरूर मिलते हैं. ठीक है, तो हाउ टू डू दिस सम इज नाउ. नेक्स्ट सम इज 2x minus 3 plus 3y minus 5 is equals to 0. Yes. उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन इज 5x minus y plus 4y minus 4 is equals to 0. This is 2x minus 3 plus 3y minus 5, 5x minus y plus 4y. Yes, these are the equation. अब इन इक्वेशन को लेकिन घबराना नहीं कि ये कैसे करेंगे, तो बहुत लंबी इक्वेशंस आ गई. नो, वेरी सिंपल. फर्स्ट ऑफ ऑल इनको सॉल्व करना है. कैसे सॉल्व करना है इसको दी 2 into x 2x 2 into 3 6. Got it? 3 into y 3y 3 into 5 15. आगे जाके ये क्या बन गई 2x plus 3y minus 15 और minus 15 minus 6 minus 21. ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन. Got it? Similarly from this way it becomes 5x minus 5 plus 4x minus 16 is equals to 0, which is equals to 5x plus 4y minus 21 is equals to 0. Got it? यही बना 5 plus 5 4y 4 16 minus 16 plus 5 is 21. Got it? अब मेरे पास इक्वेशन बन गई this equation 1 and equation number 2. मैंने equation 1 से क्या लिया, from equation 1 मैंने x की वैल्यू फाइंड की. कैसे? -21 उधर गया +21, 3y उधर गया -321. अब 2 इधर x के साथ डिवाइड है, इधर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो इधर आके डिवाइड. अब पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन नंबर 2 में इसकी वैल्यू पुट कीजिए. कैसे? देखिए 21 minus 3y by 2 plus 4y minus 21 is equals to 0. Got it? अब 5 into 21, 5 is a 5, 5 is a 10, and 5 into 3, 15y over 2 plus 4y is equals to 21. मैंने 21 को उस साइड पे. अब मैंने दोनों का एलसीएम लिया, मेरे पास बन गया 105 minus 15y plus 4 2 जा 8y, एंड जो मेरा नीचे वाला 2 था ये प्रॉपर नीचे आ गया 2. इसको मैंने उस साइड पे शिफ्ट कर दिया. गॉट इट? अब देखिए 105, अब 15 minus 8 is 7y and 2 into 21 42. गॉट इट? अब देखिए मैं 42 को इस साइड पे लेके आ रहा है, ये 42 इस साइड पे माइनस हो जाएगा एंड 7 में उधर गया प्लस हो जाएगा. नाउ 105 minus 42 and 863 is equals to 7y. Got it? अब 7 is multiplied by y, तो जब इधर आएगा 63 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो 7 होगा 7 7 है 63, तो y कितना आ गया मेरा 9. Got it? पहली फाइंड होगी. अब 9 की वैल्यू इधर पुट कर दो x में, कितनी आ जाएगी 2 into 3 into 9 21 3 into 9 over 2, that is 21 minus 27 over 2 minus 6 over 2. आंसर इज -3. तो हमारे पास x आ गया -3 और y आ गया हमारे पास 9. सो दैट्स आवर आंसर एंड दिस इज हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशंस. आई होप आपको क्लियर लग गया होगा. बहुत इजी सम है, ध्यान से करेंगे तो बहुत इजी होएगा. ये आपको एग्जाम में मिलेंगे जरूर, बहुत मिलते ही मिलते हैं. ठीक है. यस, नाउ द नेक्स्ट सम इज नेक्स्ट सम और नेक्स्ट टाइप. मैं आपको वो टाइप करा रहा थी जो बिल्कुल अलग तरह की है. ठीक है, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है. बाकी तो इजी भी है, कि आप कर सकते हो, आराम से हो जाएंगे. ओके. यस, नाउ द नेक्स्ट इज very important sum.
solve the equation by method of substitution. ठीक है, इक्वेशन आर x plus 7 by 5 minus 2x minus 5 over 4 is equals to 3y minus 5. Okay, and the second equation is 4x minus 3 by y over 6 and 5y minus 7 by 2 is equals to 18 minus 5. Got it? These are the equation. X plus 7 by 5 minus 2x minus 5 by 4 is equals to 3y minus 5. Then 4x minus 3 by 6. Yeah, these are the equation. First of all, एक चीज याद रखना बच्चे, यहाँ बहुत गड़बड़ करते हैं. Sometime इधर माइनस साइन होता है, ठीक है? तो that doesn't mean कि this minus sign is only against minus 2x5. No, this is whole पूरे पे आ गया. ध्यान चीज रखनी इसको. अब इसको सॉल्व कैसे करना है? How to solve this sum? पहले इन दोनों का एलसीएम लो. 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? It's 20. इस टर्म को किसके साथ मल्टीप्लाई करा दो? 4 के साथ, एंड दूसरी वाली को 5 के साथ, which is equals to 3y minus 5. थोड़ा सा ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. इसको सॉल्व करते हैं. 4 into x 4x plus 28 minus 10x minus minus plus 5y. अब 20 इधर था उधर चला गया. It's like this. Yes, okay. Now 4x minus 10x minus 6x plus 28 plus 5y is equals to 20 into 3 60y minus 100. Got it? मैंने क्या किया, y वाली टर्म को इस साइड पे ले आया, कांस्टेंट टर्म उस साइड पे भेज दिया. Yes, मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई. माइनस इक्वल्स टू माइनस 55y इज इक्वल्स टू माइनस 128. माइनस कॉमन निकाला मैंने सारी जगह से. मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई 6x plus 55y is equals to 128. Got it? This is my first equation. मैंने इसको सॉल्व किया. Similarly, by solving the next equation, इसको सॉल्व करेंगे. अगेन 2 और 6 का एलसीएम कितना होता है? It's 6. इसको ऐसे ही, एंड दूसरे को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ. नाउ अगेन इसको खोलो. 4x minus 3 15y minus 21. 6 को उधर शिफ्ट किया. 6 8 जा 8 6 जा 48. 6 minus 6 4 minus 6 for the 30x. यहाँ पर कैसे करेंगे? Got it. Okay. Now 4x plus 51 15y, उधर से 30 इधर आ गया. यहाँ वाले मैंने कांस्टेंट उस साइड भेज दिया. प्लस 3 प्लस 21. तो इक्वेशन बन गई मेरी 34x plus 15y is equals to 24 plus 8 130. तो ये मेरी इक्वेशन बन गई सेकंड. Yes, so this is my second equation. बस हो गया काम. हमारे पास इक्वेशंस आ गई. मैं रेज कर दूं इसको. आगे तो सब पता है हमें कैसे करना है. एक में इक्वेशन में से वैल्यू निकालो x की, दूसरी में पुट कर दो. सिमिलरली सिंपल वे यू कैन फाइंड द आंसर. देखिए मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन बनी 6x plus 55y is equals to 128, and second equation is 34x plus 15y is equals to 132. बन गई इक्वेशन ये मेरे पास. यस, इक्वेशन बन गई. अब इसको सॉल्व कैसे करना है? अगेन इसमें से x की वैल्यू निकालो. x कितना आ जाएगा आपके पास? x will become 128 minus 55y over 6. Put this value of x in equation number 2. We will get 128 minus 55y over 6 is 55 plus 15y is equals to 132. Now अगर कटिंग करनी तो कर सकते हैं. It's like 2 is 2, 2 7 is 14 and 2 3 is 6. आप अंदर सबको मल्टीप्लाई कीजिए and you will find the value of y. जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 2, and after getting the value of y इसको इसमें पुट कीजिए x की इक्वेशन में, तो your x will be
128 minus 55 into 2 divided by 6. 128 minus 5 is 10, 5 is 10, it's like this. 8, 1, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3. So this is how to solve this equation. Very important question from the examination point of view. आते भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते भी एग्जाम में. तो नेक्स्ट एक छोटा सा और क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट मेरे को लगा था. हाउ टू दिस. आई थिंक आपको समझ लग गया होगा बिकॉज इक्वेशन में सॉल्व करनी इज अ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. वो हमने पहले इक्वेशंस बनाते थे सॉल्व करके, उसके बाद आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया था हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज समटाइम्स क्वेश्चंस आते हैं ऐसे इन द पॉइंट फॉर्म, दैट इज 1.5x plus 0.1y is equals to 6. Yes, 6.2. And the next equation is 3x minus 0.4y is equals to 11.2. Yes, these are the equations. How to solve this equation? Again, वही मेथड चलना, हमने वही मेथड से फॉलो करना है. कैसे? इक्वेशन 1 में से x की वैल्यू निकाल लीजिए, y की वैल्यू निकाल लीजिए एंड इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए. मैं क्या करूंगा, देखो मैं इक्वेशन 2 यूज करूंगा क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं है ना, मुझे बेनिफिट हो जाएगा. मैंने फ्रॉम इक्वेशन 2 I have find the value of x which is equals to divided by 3. Is it okay? वही किया मैंने, इसको उधर क्या प्लस हो गया डिवाइड बाय 3. अब इसको इसमें पुट कर दूंगा. इसमें पुट किया मैंने. यस, 0.1y is equals to 6.2. अब ध्यान दीजिए 3 1 is 3, 3 5 is 15 होता है, it's 0.5 because इधर पॉइंट लगा. गॉट इट. अब हमारे पास क्या बन गया, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 11 पॉइंट इतना प्लस 0.1y is equals to 6.2. सॉरी 6.2 ये y अंदर आएगा. अब पॉइंट है पहले, it becomes 5 by 10 into 11 by 112 by 10. तो next it will be 5 by 10 into 4 by 10 y plus simple अगर करें y 1 by 10 y is equals to 6 by 10 y 62 by 10. ओके, वो चीज कर दी हमने. अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए इक्वेशंस को. 5 into 112, 5 to the 10, 5 to the 5, 6, 560 over 100 plus 20y over 100 plus 1y over 10 is equals to 62 by 10. यही होगा. एक के साथ एक कट गया, एक के साथ एक कट गया. मैंने क्या किया, अब देखो मेरे पास बना 2 by 10y plus 1 by 10 एक साइड पे, और कांस्टेंट टर्म को मैं एक साइड पे शिफ्ट कर दिया. 2y plus 1y 3y. why? because their denominators are same. 62 minus 56 it's 6 by 10. 6 से कट गया, 3 से मल्टीप्लाई होता है उधर के डिवाइड, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, इट्स 2. और y की वैल्यू दोबारा इसमें पुट कीजिए, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी. So this is how to do this method substitution for solving the linear equation. I hope आपको समझ लग गया होगा. अगर कुछ भी क्वेरीज है या प्रॉब्लम है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो विल बी बेस्ड ऑन द एलिमिनेशन मेथड फॉर सॉल्विंग द linear equations. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए ध्यान से रखिए अपना और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए. थैंक यू.